Hello students and viewers, myself Dr. Shiv Harsh Singh, and today on the occasion of the Constitution Day of India, I have come before you with a special lecture on the preamble to the Constitution of India. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिव हर्ष सिंह और आज अर्थात 26 नवंबर को अर्थात संविधान दिवस के अवसर पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक विशिष्ट व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ। प्रिय विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि 26 नवंबर भारतवर्ष भर में सन 1949 से लेकर आज तक संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 पहला संविधान दिवस था, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया या हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था और आत्मार्पित किया था। तभी से आज तक प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, द philosophy of the Constitution of India is enshrined in the preamble to the Constitution of India. At the same time, the preamble to the Constitution of India contains those values which the Constitution of India wants to achieve and wants to enforce. The preamble to the Constitution of India also contains the objectives to be achieved by the constitutional rule in India. At the same time, preamble also discusses, enshrines the guiding principles for the constitutional rulers of India. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, भारतीय संविधान का दर्शन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है। And the preamble to the Constitution of India reads, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and promoting among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation." In this Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का टेक्स्ट है, उसकी विषय वस्तु है, उसका मजमून है। Students and viewers, in this preamble to the Constitution of India, 7 philosophical principles, 7 philosophical values have been enshrined. Together with this, there are 2 more values which are enshrined in the preamble to the Constitution of India, but they are a little but less philosophical, though they are not less important than the first 7.
These total 9 features of the philosophy of the Indian Constitution are popular sovereignty, Jan Samprabhuta. Number 2, socialism अर्थात समाजवाद. Number 3, सेकुलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता. Number 4, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म अर्थात प्रजातांत्रिक गणतंत्रवाद. Number 5, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अर्थात सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय. Number 6, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप अर्थात विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता. Number 7, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी संस्तर और अवसर की समानता. Together with these 7 values, there are 2 more values. 8th is fraternity, बंधुत्व या भातृत्व या भाईचारा, and 9th one is the unity and integrity of the nation. These 9 values are enshrined in the preamble to the Constitution of India. Now let us try to understand and let me explain them one by one. The first feature of the philosophy of the Constitution of India enshrined in the preamble is popular sovereignty, जन संप्रभुता. भारतीय संविधान जन संप्रभुता की स्थापना करता है. संप्रभुता के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं. पॉपुलर सोवरेंटी, थ्योरी ऑफ पॉपुलर सोवरेंटी, जन संप्रभुता का सिद्धांत. थ्योरी ऑफ प्लूरलिस्ट सोवरेंटी और प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत. एंड लीगल थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, संप्रभुता का विधिक सिद्धांत या इसी को मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत भी कहते हैं. इन 3 सिद्धांतों में से भारतीय संविधान पॉपुलर सोवरेंटी या जन संप्रभुता के सिद्धांत को स्थापित करता है और अपनाता है. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, हमें सर्वप्रथम संक्षेप में संप्रभुता की अवधारणा और अर्थ को समझ लेना चाहिए. सोवरेंटी is basically the free political authority or independent political authority which is not subject to control by any internal or external authority. संप्रभुता मूलतः स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता है, या हम यूं कहें कि स्वतंत्रता राज्य की वह स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता है जो किसी बाह्य या आंतरिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं होती है. Sovereignty is basically the independent political authority which is not subject to control by any external or internal authority or power. इस अर्थ में संप्रभुता भारतीय संविधान ने भारत की जनता में सामूहिक रूप से
निहित किया है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय जनगण में सामूहिक रूप से, वी द पीपल ऑफ इंडिया में सामूहिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा संप्रभुता निहित की गई है। अर्थात अंतिम स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता भारत की जनता में, वी द पीपल ऑफ इंडिया में निहित है। यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों पर गौर करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन ... और अंत में कहा गया है, दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अगर इन दो बातों को, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, हम भारत के लोगों ने भारतीय राज्य को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संप्रभु राज्य के रूप में बनाया है, और इस संविधान को 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया है। यहाँ पर अधिनियमित शब्द एनेक्टेड बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ब्रिटिश जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन ने बखूबी कहा है कि लॉ इज कमांड ऑफ द सोवरेन, विधि संप्रभु का आदेश है। अर्थात विधि संप्रभु से निस्सरित होती है, विधि संप्रभुता से निस्सरित होती है। केवल और केवल संप्रभु ही विधि निर्माण कर सकता है और निर्मित विधि को सफलतापूर्वक संपूर्ण राज्य में लागू कर सकता है। अब यहाँ यदि आप गौर करें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अधिनियमित किया है, इस संविधान का अधिनियमन किया है। अर्थात इस संविधान को एक अधिनियम के रूप में, एक एक्ट के रूप में, एक विधि के रूप में निर्मित किया है। और अभी अभी हमने बताया कि विधि केवल संप्रभु ही निर्मित कर सकता है, तथा यह भी महत्वपूर्ण बात है जानना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान किसी देश की प्रथम विधि है या विधि है। संविधान को विधि के रूप में हम भारत के लोगों ने निर्मित किया है। Do hereby, we the people of India do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, स्वयं को देते हैं। चूंकि हम भारत के लोगों ने संविधान को अधिनियमित किया है, एक विधि के रूप में निर्मित किया है, और संप्रभु ही विधि का निर्माण कर सकता है और निर्मित विधि को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। अतः इस तर्क से स्पष्ट है कि चूंकि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अधिनियमित किया है, इसे विधि या एक्ट या अधिनियम के रूप में निर्मित किया है, अतः हम भारत के लोग संप्रभु हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान ने जन संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया है और भारतीय राज्य में जन संप्रभुता की स्थापना की है। अंतिम राजनीतिक शक्ति
संपूर्ण जनता में, वी द पीपल ऑफ इंडिया में संविधान द्वारा निहित की गई है। पॉपुलर सोवरेनिटी के पश्चात जो दूसरा फिलोसॉफिकल फीचर है भारतीय संविधान का, जो कि प्रस्तावना में एनश्राइंड है, सन्निहित है, वह है सोशलिज्म, समाजवाद। यहाँ पर एक बार फिर हमें समाजवाद का संक्षेप में अर्थ समझ लेना अति आवश्यक होगा। टू बी वेरी सिंपल, socialism is a political and economic theory as well as a movement aiming at the common or collective organization of the community in the interest of the mass of the people or in the interest of the whole community through the common ownership and collective control of the means of production and distribution। जो समाजवाद है वह एक ऐसा राजनीतिक आर्थिक सिद्धांत है, एक आंदोलन है जो समाज के सामूहिक संगठन पर बल देता है, समाज का सामूहिक संगठन करना चाहता है, ऐसा सामूहिक संगठन जो कि पूरे समाज के हित में हो, सारी जनता के हित में हो, न किसी व्यक्ति के हित में, न कि किसी वर्ग विशेष के हित में। और समाजवाद ऐसा उत्पादन और वितरण या विनिमय के साधनों के राष्ट्रीयकरण या सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण के माध्यम से करना चाहता है। इसी अर्थ में समाजवाद को भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है, अपनाया गया है। यहाँ पर अगर हम एफ.जे.सी. हार्नशा द्वारा वर्णित समाजवाद के 6 तत्वों की बात करें तो यह और स्पष्ट हो जाएगा कि किस अर्थ में भारतीय संविधान ने समाजवाद को अपनाया है और समाजवाद की स्थापना की है। एफ.जे.सी. हार्नशा ने जो 6 प्रमुख तत्व बताए हैं समाजवाद के, जिन्हें 6 E's के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि हर शब्द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ई से प्रारंभ होता है। इसमें पहला इसेंशियल है एग्जाल्टेशन ऑफ कम्युनिटी अबव द इंडिविजुअल। सेकंड एलिमेंट है, सेकंड इसेंशियल है इक्वलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशंस। थर्ड इसेंशियल है elimination of the capitalist। फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट है एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। फिफ्थ इसेंशियल एलिमेंट है एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ इसेंशियल है एराडिकेशन ऑफ कंपटीशन। हार्नशा द्वारा जो 6 इसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं समाजवाद के, इन इसेंशियल एलिमेंट्स में जो फर्स्ट 2 हैं अर्थात एग्जाल्टेशन ऑफ कम्युनिटी above the individual and the second one equalization of human conditions, ये दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, सकारात्मक प्रकृति के हैं। और जो शेष 4 हैं अर्थात एलिमिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट, एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, एक्सटिंक्शन ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज एंड इरेडिकेशन ऑफ
कंपटीशन, ये लास्ट के चारों, अंतिम चारों निषेधात्मक, नकारात्मक प्रकृति के हैं। भारतीय संविधान में जो समाजवाद अपनाया गया है उसमें दो प्रथम सकारात्मक तत्व एफ.जे.सी. हार्नसा द्वारा बताए गए सम्मिलित किए गए हैं। अर्थात जिस अर्थ में भारतीय संविधान ने समाजवाद को अपनाया है, स्थापित किया है, वह समाजवाद व्यक्ति के बजाय व्यक्ति से ऊपर पूरे समाज के, संपूर्ण समाज के सामूहिक हित को प्राथमिकता देता है। जो समाजवाद भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया है, समाजवाद को अपनाने में भारतीय संविधान की मंशा है कि किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष या कुछ एक व्यक्ति समूह या व्यक्ति समूहों को नहीं, बल्कि पूरे समाज के हित को, पूरे समाज की प्रगति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एग्जाल्टेशन ऑफ कम्युनिटी अबव द इंडिविजुअल और इक्वलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशंस। सभी व्यक्तियों की परिस्थितियां एक जैसी हों, इस पर भारतीय संविधान द्वारा स्थापित समाजवाद बल देता है और भारतीय संविधान की मंशा है कि इसी प्रकार का समाजवाद भारतीय शासन व्यवस्था आगे बढ़ाए। इक्वलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशंस का तात्पर्य है कि मुख्यतः भारत के सभी लोगों की आर्थिक परिस्थितियां एक जैसी हों। भारतीय शासन का यह सतत उद्देश्य होना चाहिए, यह सतत प्रयास होना चाहिए कि भारतीय समाज में बहुत अधिक आर्थिक ऊंच नीच न हो। जैसा कि रूसों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे ढंग से लिखा है कि जो मॉडर्न स्टेट है उसका यह सतत प्रयास होना चाहिए कि देश में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर न होने पाए कि वह दूसरे को खरीद सके, और देश में कोई व्यक्ति इतना गरीब न होने पाए कि उसे स्वयं को बेचने के अलावा कोई रास्ता न सूझे, उसके पास कोई रास्ता न। ये अर्थ है इक्वलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशंस का। कोई मैथमेटिकल इक्वलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान की मंशा है कि भारतीय शासन जो कि संविधान का शासन होगा और भारतीय जो पॉलिटी राज व्यवस्था है वह इस प्रकार का प्रयास करे कि लोगों, भारत की जनता के सदस्यों, भारत के नागरिकों की आर्थिक परिस्थितियां लगभग एक जैसी हो, बहुत अधिक आर्थिक अंतर न हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में। तो ये समाजवाद है। इस अर्थ में समाजवाद को भारतीय संविधान ने अपनाया है। अध्ययन करने पर और जो भारतीय संविधान की वर्किंग है उसको ऑब्जर्व करने पर यह प्रतीत होता है कि इसी अर्थ में समाजवाद को भारतीय संविधान ने अपनाया है और भारत में समाजवाद की स्थापना की है। अब यहाँ पर एक जो कौतूहल शायद दर्शकों और विद्यार्थियों के मन में उठ रहा होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद का शब्द है यह तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। समाजवाद के शब्द को वस्तुतः 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जो कि 3 जनवरी 1977 को प्रभावी हुआ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में समाजवादी पुट और समाजवादी तत्व राइट फ्रॉम द डे वन विद्यमान रहे हैं। इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।
जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा केवल 3 शब्द समाविष्ट कराए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसके अलावा जो प्रस्तावना है वह मूल संविधान की प्रस्तावना ही है। तो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इज क्लियरली a thing of socialist nature. It is a socialist goal. अगर हम भारतीय संविधान के शासन और इंडियन पॉलिटी जो कि संविधान के अनुसार निर्मित किया गया है, शासन या भारतीय शासन व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत अपनाई गई अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतवर्ष के शासन ने प्रारंभ से ही मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया है, जहाँ की कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में हैं, कैपिटलिस्ट प्रकृति की हैं, और कुछ आर्थिक संस्थान वे समाजवादी प्रकृति के हैं, सोशलिस्ट नेचर के हैं। न तो प्योरली कैपिटलिस्ट पाथ को हमने अपनाया है, ना ही प्योरली सोशलिस्ट पाथ को अपनाया है। और भारतीय संविधान ने सोशलिज्म की स्थापना करके यह प्रयास किया है कि डेमोक्रेटिक मीन्स के द्वारा सोशलिस्ट एंड्स को प्राप्त किया जाए। और सोशलिस्ट एंड्स वही हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशंस, एग्जाल्टेशन ऑफ कम्युनिटी अबव द इंडिविजुअल। तो इस तरह से मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भले ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया हो, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात पहले दिन से कही गई है। जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे जाएं तो मूल संविधान का जो भाग 4 है, पार्ट 4, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी समाजवादी प्रकृति के हैं। तो समाजवाद भारतीय संविधान में राइट फ्रॉम द डे वन विद्यमान है। अगर हम प्रैक्टिकल इंडियन पॉलिटी की बात करें, भारतीय शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारतवर्ष ने सन 1951 से प्लान्ड डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपनाई है। 51 से 1951 से भारतवर्ष में 1950 में प्लानिंग कमीशन का निर्माण हुआ और उसके पश्चात भारतवर्ष ने 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया। पंचवर्षीय योजनाएं शासन के नियंत्रण में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई जाती हैं। और विद्यार्थियों, यहीं पर प्रसंगवश मैं यह बात भी बता दूं कि जो प्लान्ड डेवलपमेंट या आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की स्ट्रेटजी है, यह सर्वप्रथम भूतपूर्व यूएसएसआर या सोवियत संघ में 1928 में प्रारंभ की गई और इसके जन्मदाता प्रोजेनिटर जोसेफ स्टालिन रहे हैं। स्ट्रेटजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ फार्मर यूएसएसआर डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। और नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, वे रूसी समाजवाद से बहुत अधिक मुतासिर रहे हैं, प्रभावित रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। तो भारत की प्रैक्टिकल इकोनॉमिक सिस्टम में, भारत की शासन व्यवस्था में प्लान्ड डेवलपमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा भी लगभग प्रारंभ से ही,
क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में और व्यावहारिक शासन में प्रथमतः एकदम शुरू से समाजवाद विद्यमान रहा है। प्रैक्टिकल इंडियन पॉलिटिक्स में, प्रैक्टिकल इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में, इन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, planning has been adopted right from 1951 and planning commission was established in 1950. तो विद्यार्थियों यह बात समझ लेनी चाहिए कि सोशलिस्ट शब्द भले ही 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में, लेकिन भारतवर्ष के संविधान में सोशलिज्म राइट फ्रॉम द डे वन विद्यमान रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्यों सोशलिस्ट शब्द भारतीय संविधान में 1976 में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो चूंकि भारतीय संविधान में समाजवाद और भारतीय संविधान की फंक्शनिंग में, भारतीय राज्य व्यवस्था की फंक्शनिंग में समाजवाद प्रारंभ से ही विद्यमान रहा है, इस बात को और लाउडली कहने के लिए, इन अ मोर प्रोनाउंस्ड वे, इसको स्पष्ट करने के लिए कि समाजवाद जो अंतर्निहित था उसे और स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए परहैप्स शायद समाजवाद का शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब इसके पश्चात जो थर्ड फिलोसॉफिकल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि विधिवत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित है, वह है सेकुलरिज्म। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, like socialist, the word secular has also been incorporated by the same 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which came into effect on 3rd January 1977. विद्यार्थियों, यहाँ पर भी मैं पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म राइट फ्रॉम द डे वन विद्यमान रही है। और एक और चीज प्रसंगवश मैं यहीं स्पष्ट कर दूं कि सेकुलरिज्म की शुद्ध हिंदी पंथ निरपेक्षता ही है, धर्मनिरपेक्षता नहीं। धर्मनिरपेक्षता पाश्चात्य अवधारणा है। इसका अर्थ निकलता है इनडिफरेंस टू रिलीजन, धर्म के प्रति उदासीनता, और न्यूट्रलिटी टू रिलीजन, धर्म के प्रति तटस्थता या धर्म तटस्थता। जबकि भारतवर्ष धर्म सापेक्ष राज्य है। भारतवर्ष के लोग धर्म सापेक्ष हैं, न्यूट्रल टू रिलीजन नहीं है, इनडिफरेंट टू रिलीजन नहीं है, धर्म के प्रति उदासीन नहीं है। वे धार्मिक लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। और भारतवर्ष में सब कोई जानता है अनेक धर्मावलंबी हैं। तो सेकुलर शब्द की शुद्ध हिंदी पंथ निरपेक्ष है, और सेकुलरिज्म को हम पंथ निरपेक्षता कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न पंथों को मानने और उनके अनुसार उपासना करने, पूजा करने, इसकी पूरी छूट है। तो भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म राइट फ्रॉम द डे वन विद्यमान है। इसके दो बहुत ही स्पष्ट सबूत हैं, प्रूफ हैं। नंबर वन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप दी गई है। तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप अर्थात विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यही तो सेकुलरिज्म है, और यह मूल प्रस्तावना में है। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे जाएं तो भारतीय संविधान के भाग 3 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही तो सेकुलरिज्म है। और यह पार्ट 3 तथा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारी विशेषताएं राइट फ्रॉम द डे वन भारतीय संविधान में विद्यमान है। तो सेकुलरिज्म भारतीय संविधान का पार्ट रहा है, इसकी फिलॉसफी का एक प्रमुख पहलू रहा है राइट फ्रॉम द डे वन। सेकुलर शब्द को भी मोर लाउडली, चूंकि यह इम्प्लाइड था और जोर से स्पष्ट रूप से इन अ प्रोनाउंस्ड फैशन इसको दर्शाने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया। नाउ लेट्स गो अहेड, व्हाट इज सेकुलरिज्म? दो परिभाषाएं तो अगर आप ध्यान दें तो हमारे संविधान में ही बहुत स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। एक बात प्रस्तावना में लिखी हुई है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। So liberty of belief, faith and worship is secularism. दूसरी बात भारतीय संविधान के भाग 3 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सेकुलरिज्म। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ही पंथनिरपेक्षता है। साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान इस अर्थ में पंथनिरपेक्षता को स्थापित करता है और अपनाता है कि भारतवर्ष में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, वह धार्मिक राज्य नहीं है और भारतवर्ष में बहुत सारे धर्म विद्यमान हैं और धर्मावलंबी विद्यमान है और भारतवर्ष का संविधान सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स की बात करता है। यही पंथनिरपेक्षता है, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, सर्वधर्म समभाव। अब अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं कि यह सर्वधर्म समभाव की बात कहाँ से उपजी, क्यों संविधान में, या अचानक नहीं संविधान में इनकॉर्पोरेट की गई है। देखिए स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कल्चर बाउंड कॉन्सेप्ट। एट द सेम टाइम इट आल्सो इवॉल्व्स आउट ऑफ द हिस्टोरिकल लेगेसी। संविधान संस्कृति संबद्ध अवधारणा है, यह किसी देश की संस्कृति से इनपुट लेता है, उस संस्कृति का संपोषक होता है और उस संस्कृति के अनुसार होता है और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष युग युग से एक मल्टी कल्चरल, मल्टी नेशनल, मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी लिंगुअल कंट्री रहा है। भारत में अनेक प्रकार की राष्ट्रीयताएं रहती रही हैं और रह रही हैं, अनेक प्रकार की संस्कृतियां पनप रही हैं और आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से। और भारतवर्ष में अनेक प्रकार के धर्मावलंबी हैं, अनेक प्रकार के भाषाभाषी हैं। अगर हम एक शब्द में कहें तो भारतवर्ष एक मल्टी कल्चरल कंट्री रहा है और है, क्योंकि कल्चर के ही पार्ट है भाषा, धर्म, वेशभूषा और अन्य चीजें। तो इंडिया हैज बीन अ मल्टी कल्चरल कंट्री सिंस एजेस, so its constitution has to be secular, otherwise the Indian nation would not survive, it might go to pieces. That's why the makers of Indian constitution, they have accepted secularism as the sheet anchor of the Indian nation
and they have enshrined it in the constitution. Earlier it was implicit and it needed a study of the constitution to find out. Now since 1976, that is since 42nd Amendment Act 1976, it has been clearly, in a pronounced way, in a loud way, it has been incorporated in the preamble of the Indian Constitution. अब अगर हम ये बात करें कि भारतवर्ष की महती आवश्यकता रही है इस राष्ट्र को बनाए रखने के लिए, इस राष्ट्र को, भारतीय राष्ट्र का जो सत्य है वह मल्टीकल्चरल है, मल्टीनेशनल है। और अगर हम उद्धृत करें पोएट लॉरिएट फिराक गोरखपुरी को, he has very beautifully written that सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। आई रिपीट, सरजमीने हिंद पर अक़वामे आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। अर्थात भारत की जमीन पर, धरती पर विश्व की तमाम कौमों, नेशनैलिटीज़ के काफिले समूह ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे बसते गए और इस तरह धीरे धीरे हिंदुस्तान बनता गया और बन गया। अक़वाम इज प्लूरल ऑफ द वर्ड कौम। प्लूरल को उर्दू में जमा कहते हैं, तो कौम उर्दू शब्द है, हम कह सकते हैं कि कौम का जमा अक़वाम। प्लूरल ऑफ कौम, कौम का मतलब होता है नेशनैलिटी। तो विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग दुनिया भर से, अक़वाम आलम, आलम मीन्स वर्ल्ड, दुनिया, दुनिया के तमाम कौमों के लोग ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे केम टू इंडिया in groups and they settled in India gradually. Thus India was made. तो भारत का सत्य है बहुसंस्कृतिवाद। यह मल्टीनेशनल कंट्री रहा है युग युग से, और भारत एक राष्ट्र के रूप में बहुत अच्छे ढंग से तभी सर्वाइव कर सकता है जबकि सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस की जाए। तो सेकुलरिज्म इज सीट एंकर ऑफ इंडियन नेशन। यह बहुत मजबूत आधार है भारतीय राष्ट्र का, तभी इसमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में, विभिन्न संस्कृति के लोगों के बीच में। भारत की संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब है, मिलीजुली संस्कृति है। अब थोड़ा सा और गहराई में जाएं तो जो सेकुलरिज्म का अर्थ है, पंथनिरपेक्षता का अर्थ है, जिस अर्थ में इसे भारतीय संविधान में और संविधान की प्रस्तावना में इनकॉर्पोरेट किया गया है, वह सर्वधर्म संभाव है। लेकिन यह कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सर्वधर्म संभाव की उत्पत्ति और पंथनिरपेक्षता की उत्पत्ति ऋग्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति से हुई। एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति। ट्रुथ इज वन बट वाइज डिस्क्राइब इट वेरियसली। सत्य तो एक है लेकिन विद्वान इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, यह ऋग्वेदिक उक्ति है, और इसी वेदिक उक्ति और बुद्धि पर भारतवर्ष के संविधान में अपनाई गई और स्थापित की गई पंथनिरपेक्षता आधारित है। इसको अगर हम और एक्सप्लेन करें तो एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक है, विद्वान केवल इसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो सत्य एक है तो सभी लोगों के लिए एक है। और दूसरी चीज़, सत्य में वो ईश्वर, गांधी जी कहा करते थे, ट्रुथ इज गॉड। सत्य और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, सत्य में वो ईश्वर।
ट्रूथ इज इक्वल टू गॉड। तो सत्य एक है और सत्य बराबर ईश्वर, सत्यमेव ईश्वर, सत्य ही ईश्वर, ट्रूथ इज गॉड। यह सत्य एकम सत्य, सत्य एक है और सत्यमेव ईश्वर, सत्य ही ईश्वर है। यह जो वैदिक बुद्धि है, यह जो वैदिक ज्ञान और सत्य है, इसी पर भारतवर्ष की पंथ निरपेक्षता भारतवर्ष के संविधान द्वारा अपनाई गई और भारत के संविधान में स्थापित पंथ निरपेक्षता यहीं से उपजी है। इसे अगर और हम सरल करें या अगर सामने बोर्ड होता तो हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि भारतवर्ष की सरजमीन हिंद पर बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न धर्मावलंबी लोग हैं और समूह हैं। हर व्यक्ति वह अपने अपने पंथ के अनुसार, पंथ का अर्थ हम पाथ भी ले सकते हैं, अपने अपने पंथ पर चलता हुआ, चाहे वह इस्लामिक पंथ पर चले, चाहे वह सिखिज्म के पंथ पर चले, खालसा पंथ पर चले, चाहे वह ईसाइयत के पंथ पर चले, पाथ पर चले, चाहे वह हिंदुइज्म के पंथ पर पाथ पर चले, और सिखिज्म, हिंदुइज्म, ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी और पारसी पंथ पर, सब पंथों पर चलता हुआ वह पहुँचेगा सत्य तक ही। तो हमारे संविधान में जो पंथ निरपेक्षता विद्यमान है, स्थापित की गई है, उसका तात्पर्य यही है कि भारतवर्ष का प्रत्येक धर्म समूह या भारतवर्ष का प्रत्येक धर्मावलंबी व्यक्ति, उसे छूट है कि वह अपने अपने पंथ से चलता हुआ अपनी अपनी पूजा पद्धति, उपासना को अपनाता हुआ वह अपने सत्य को, अपने ईश्वर को चरितार्थ कर सकता है, अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, सत्य तक पहुंच सकता है। इसकी पूरी छूट है हमारे भारतवर्ष में, और हमारे संविधान ने बहुत मजबूती के साथ सेकुलरिज्म को स्थापित किया है। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पाथ्स, be it Islamic path, be it Hinduism, Hindu path, be it Christian path. Each and every religionist is free to adopt and follow his or her own panth or path to arrive, to reach, to realize the truth, to know the God, to know the truth. This is exactly secularism or पंथ निरपेक्षता in Hindi. Now students, let us go further. The fourth philosophical feature of the Constitution of India, enshrined in the preamble to the Constitution of India, is democratic republicanism. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाते हैं। तो भारतीय संविधान ने शासन निर्माण के लिए, शासन के लिए, शासन के प्रकार के रूप में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनिज्म के सिद्धांत को अपनाया है और स्थापित किया है। Students and viewers, there are two major types of democracy: direct democracy, meaning प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, and indirect democracy, meaning अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी,
यह आज भी स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है और अमेरिका के कुछ एक राज्यों में है, इसकी प्रैक्टिस होती है। लेकिन भारतवर्ष ने और ब्रिटेन में और अमेरिका के सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के सिद्धांत को और तरीके को अपनाया गया है। यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक शब्द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक का ही संक्षेपण है। रिपब्लिक इज बेसिकली एब्रीविएशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। तो भारतीय संविधान ने शासन निर्माण हेतु रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया है और स्थापित किया है। अर्थात भारतवर्ष के शासक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होंगे, भारतीय जनगण के प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें निर्वाचित किया जाएगा थ्रू जनरल इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि चूंकि भारत का प्रेसिडेंट अर्थात हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष, वह जनता द्वारा इनडायरेक्टली ही सही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए भारतवर्ष रिपब्लिक है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी चीफ एग्जीक्यूटिव है, वह राष्ट्राध्यक्ष है, वह भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन वह जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता के निर्वाचित सदस्यों द्वारा वह निर्वाचित होता है। नॉट ओनली द हेड ऑफ स्टेट बट आल्सो द हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वह भी जनता द्वारा निर्वाचित होता है। पहले वह एमपी होता है, तब पीएम होता है। इसके साथ ही साथ द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स is elected by the people। तो भारत के शासन का हर सदस्य वह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होता है। भारतीय संविधान ने यही सिद्धांत अपनाया है कि भारतवर्ष में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, जो कि जनरल इलेक्शंस, आम चुनावों में निर्वाचित किए जाएंगे, वही शासन का निर्माण करेंगे और शासन का संचालन करेंगे। The Indian Constitution has adopted and established democratic republicanism as the principle, as the mode of government formation, and the elected representative of the public will run the government, they will conduct the governance. So students, this much is sufficient for this lecture, otherwise it will become very lengthy and long. The remaining 5 philosophical features of the Indian Constitution enshrined in its preamble, they still remain to be explained, but someday in some other lecture I will try to explain the remaining 5 philosophical features of the Indian Constitution. For today this is sufficient, and at last wish you all a very happy Constitution Day। विद्यार्थियों और दर्शकों सभी को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।